A rectangle, a square, a circle, or a triangle. If I give you this shape and ask you to find out the area of it, we can very easily do it with the help of our conventional mathematics. Or else, if I give you a cube, a cuboid, sphere, pyramid, or a cylinder and ask you to calculate the surface area or the volume of the shapes, then also we can very easily calculate this area and volumes. But what if I give you this shape or maybe this and ask you to calculate the area or the volume? Would you be able to do it? Maybe you can do it, but it will be very time taking, tedious and labor intensive process. And that's why in 17th century one English scientist, Sir Isaac Newton, and one German philosopher, scientist and diplomat, Gottfried Leibniz, arrives with an extraordinary hack we call today calculus. So yes, behind the development of calculus, these two main great personalities were responsible. आज भी इस बात का डिस्कशन होता है कि सबसे ज्यादा क्रेडिट किसका है, न्यूटन का है या लेबनिज का। हालांकि ये बात सच है कि सर आइजैक न्यूटन एंड लेबनिज दोनों ने ही 17वीं शताब्दी में यानी कि 17th सेंचुरी में इंडिपेंडेंटली इसकी रिसर्च को कंडक्ट किया था, लेकिन सर आइजैक न्यूटन ने लेबनिज के 1 डिकेड पहले ही अपनी पेपर पब्लिश कर दिया था, जिसके कारण ज़्यादातर क्रेडिट सर आइजैक न्यूटन ही ले जाते हैं। लेकिन ये ऐसा भी कहा जाता है कि लेबनिज ने कैलकुलस के ऊपर रिसर्च न्यूटन से पहले शुरू किया था। ओके, सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कैलकुलस को समझना, बिकॉज आवर मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज बेस्ड ऑन द गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, but before that we will see what actually the calculus is. Okay, calculus mainly deals with 3 main calculations: limit, differentiation and integration. चलिए इन सबको एक एक करके समझते हैं, but after the intro. Hello everyone, welcome to my YouTube channel UPSC Express. In this video we are going to initiate our second topic of discussion of engineering mathematics, that is calculus. Few may find calculus to be very interesting and easy, but for some it may be a headache. We are first time being introduced with calculus in 11th and 12th standard. And कहते हैं ना, अगर मुसाफिर के साथ दोस्ती हो जाए तो सफ़र काफ़ी अच्छी कटती है. Those students who become comfortable with calculus in 11 and 12 itself, their journey of engineering went smooth. But I was definitely not one of them, so that's why I had to struggle a little. But after some time, when I invested a little time in understanding this branch of mathematics, I realized that calculus is a very beautiful mathematics. And why I am saying this? It's because if someone asks me to define calculus in a layman language, then I would just simply say that calculus is nothing but an extraordinary feature added to the conventional mathematics. It's nothing but a trick. Calculus mainly deals with 3 things: limits, differentiation and integration. And what are the 3 calculations and how do we do it, how the calculus are actually working, we will understand. Our first topic of discussion will be limit only. In the engineering service and GATE syllabus also we will be studying from the limit itself, but let's understand what these 3 basically means. Okay, आसान भाषा में समझे तो लिमिट एक्चुअली इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंजेस को दर्शाता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक फंक्शन में जो चेंजेस हो रहा है, एक लिटिल चेंज, उस चेंज को हम लिमिट्स की मदद से कैलकुलेट करते हैं. जो डिफरेंशिएशन होता है वो बताता है रेट ऑफ चेंज को, यानी कि एक फंक्शन जो कि मान के चलिए किसी इंडिपेंडेंट पैरामीटर के ऊपर डिपेंडेंट है, उस इंडिपेंडेंट पैरामीटर के चेंज होने के रेस्पेक्टिवली आपका फंक्शन किस तरह से चेंज हो रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज योर डिफरेंशिएशन. And integration is all about finding out the area of your functions. Okay, so differentiation और integration को समझने के लिए हम एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल को लेंगे. मान के चलते हैं अभी अभी आपने बाल कटा के आए हैं. बाल कटा के आए हैं मतलब पूरा शेव करके आए हैं. There is no hair on your head. You are completely bald. Now, what is the length of your hair? It is 0 millimeter or 0 centimeter. Now, the second condition that we are going to assume is that after 10 days
your hair grows up to 1 centimeter. Okay, and third condition is we are taking the rate of change of your hair to be uniform, like it is not changing with time, so it is always constant. What I said is that after 10 days your hair grows up to 1 centimeter. So क्या ये कहना उचित होगा कि 10 दिन के बाद अचानक से आपका बाल 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है? Of course not. ये हर दिन बढ़ रहा था, हर घंटे बढ़ रहा था, हर मिनट बढ़ रहा था, हर सेकंड बढ़ रहा था। तो हर एक मिनट में, हर एक सेकंड में आपका बाल कितना बढ़ रहा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ योर हेयर ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। और यहाँ पे हम लोगों ने जो तीसरा कंडीशन लिया था कि रेट ऑफ चेंज विल बी कांस्टेंट, सो दैट आवर डिस्कशन कैन बी लिटिल ईजियर एंड आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इट मच मोर इजीली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कर्व में आपका रेट ऑफ चेंज जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि द स्लोप ऑफ दिस कर्व इज कांस्टेंट, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। सो अगर आपने 10 दिन के इस इंटरवल को 10 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, यानी कि आपने हर एक टुकड़ा एक एक दिन का लिया है, और आप देख सकते हैं कि हर एक दिन में आपका बाल का बढ़ने का जो रेट है वो है 1 मिलीमीटर, यानी कि हर एक दिन 1 मिलीमीटर बढ़ रहा था। ओके, तो इसका कांस्टेंट स्लोप है, तो इस स्लोप को जब हम प्लॉट करेंगे तो आपको एक दूसरा कर्व मिलेगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। व्हाई? बिकॉज हियर द वाई एक्सिस इज योर हेयर लेंथ, बट इन द सेकेंड कर्व द वाई एक्सिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ हेयर, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ हेयर इज कांस्टेंट 1 millimeter per day. So 1 millimeter per day. Now this is called the differentiation, and now we are going to integrate it. When you integrate it, you are actually finding out the area of this curve. When you integrate it up to 10 days, you will find the area of this curve up to 10 days, and it appears to be 1 millimeter into 10 days, that is 10 millimeter, which is equals to 1 centimeter. यानी कि आपने देखा कि किस तरह से हम लोग एक छोटे मोटे चेंजेस को लेते हैं, उसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको रेट ऑफ चेंज मिलता है, और उस रेट ऑफ चेंज को प्लॉट करके उसको जब हम टाइम के रेस्पेक्टिवली इंटीग्रेट करते हैं तब हमको 10 दिन के बाद आपका हेयर ग्रोथ कैसा होगा ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 20 दिन के बाद कैसा होगा वो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल जहाँ पे हम लोग कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। कंडीशन में चेंजेस सिर्फ इतना है कि आपका जो हेयर ग्रोथ है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं है। जनरली प्रैक्टिकली आप लोग जो कुछ भी एग्जांपल्स देखें वहाँ पे कोई भी चेंजेस कंटिन्यूअस नहीं होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो कभी 30 डिग्री होता है तो 32, कभी 32 डिग्री, कभी 33 डिग्री तो कभी 35 डिग्री, लेकिन ये इंटीजर टू इंटीजर जंप नहीं करता है, ये डेसिमल वैल्यूज़ में भी चले जाते हैं और ये कंटिन्यूअसली वेरी करता है। और इसी कंटिन्यूअस वेरिएशन को स्टडी करना ही हमारा लिमिट का काम है। द रेट ऑफ चेंज को स्टडी करना यानी कि द स्लोप ऑफ द फंक्शन को स्टडी करना हमारा डिफरेंशिएशन का काम है, और एरिया को निकाल के एक्चुअल वैल्यू एक टाइम के बाद या फिर एक दूरी के बाद क्या होने वाला है इसको प्रेडिक्ट करना इंटीग्रेशन का काम है। चलिए दूसरे एग्जांपल में हमने कंसिडर किया है कि आपका जो हेयर ग्रोथ का जो रेट है वो कांस्टेंट नहीं है। पहले 5 दिन ये उसी रेट से बढ़ते हैं जैसे पहले एग्जांपल में बढ़ रहा था, यानी कि 1 मिलीमीटर पर डे। लेकिन इन द सेकेंड एग्जांपल आफ्टर 5 days up to 10 days your hair growth becomes lesser, like the rate of change gets smaller। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप शेव करके आते हैं तो पहले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है, लेकिन एक हाइट तक बढ़ जाने के बाद आपका बियर्ड का ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लोप चेंज हो रहा है। 5 दिन तक तो उसी रेट से बढ़ रहा था, लेकिन 5 दिन के बाद रेट थोड़ा सा घट गया। तो अब इसका जो स्लोप है इसको जब हम लोग प्लॉट करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा शेप आएगा, एक ऐसा फंक्शन आएगा। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो अप टू 5 days आप एक इंटीग्रेशन करेंगे और अप टू 10 days आप एक इंटीग्रेशन करेंगे, और दोनों का रेट अलग हो रहा है। तो इसके मदद से आप देख पाएंगे कि एग्जैक्टली 10 दिन के बाद आपका हेयर ग्रोथ कैसा होगा। ओके, तो जनरली क्या होता है ना, हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हो रहा है इसमें सब कुछ इतना लीनियर या इतना स्मूथ नहीं होता है, तो जिसके कारण से हम लोगों को कैलकुलस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो था कैलकुलस का बेसिक कि किस तरह से डिफरेंशिएशन काम करता है, किस तरह से इंटीग्रेशन काम करता है, किस तरह से लिमिट काम करता है।
अब हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट की मदद से हम लोग किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे जज करते हैं, किस तरह से डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोगों का लिमिट काम में आता है, इन सभी को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। डिस्कशन में और अंदर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विस के लिए हमको कैलकुलस में क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं एक एक करके। पहले हम लोगों का डिस्कशन जो होगा वो लिमिट के ऊपर ही होगा, लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। उसके अंडर में हम लोग देखेंगे कि लिमिट्स का एल्जेब्रा क्या है, देन सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, देन एल हॉस्पिटल रूल। उसके बाद हम लोग समझेंगे कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन में हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना नहीं सीखेंगे, इसमें हम लोग कुछ ऐसे फंक्शंस को देखेंगे जिसको नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं, जैसे कि इम्प्लिसिट फॉर्म, एक्सप्लिसिट फॉर्म, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस, पैरामीट्रिक फॉर्म, लेबनीज रूल एटसेट्रा। उसके बाद हम लोग देखेंगे मीन वैल्यू थ्योरम, दैट इज रोलिस थ्योरम, कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एंड आफ्टर दैट वी विल सी द टेलर सीरीज एक्सपेंशन। उसके बाद मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर हम लोग देखेंगे कि टोटल डेरिवेटिव, चेन रूल, होमोजेनियस फंक्शन, ऑयलर्स थ्योरम एटसेट्रा। एंड आफ्टर दैट वी विल सी द इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, under which comes length of arc, surface area bounded by curve. This much will be the syllabus for calculus. लेकिन यहीं पे कैलकुलस ख़त्म नहीं होता है, उसके बाद आते हैं हमारा वेक्टर कैलकुलस, जिसको मैं एक अलग यूनिट करके रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, उसके लिए अलग से सीरीज़ बनाऊंगा, क्योंकि उसमें भी कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम, ये सब आ जाता है, तो जो कि आपका नॉर्मल जो कैलकुलस जो इस यूनिट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उससे थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए वेक्टर कैलकुलस को हम लोग अलग डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन द नेक्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग आवर डिस्कशन फ्रॉम लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ओके, now let us understand the concept of limit. Limit of any function simply means एक particular वैल्यू के लिए आपका फंक्शन जो वैल्यू अटेन करता है, अगर वहाँ पे आप एक फंक्शन की लिमिट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका सिंपल मतलब ये है कि उस वैल्यू को अटेन करने से ठीक पहले या फिर उस वैल्यू को अटेन करने के ठीक बाद आपके फंक्शन का क्या होता है, दैट इज कॉल्ड लिमिट। चलिए एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर देयर इज अ फंक्शन ऑफ x, ओके, एज द वैल्यू ऑफ x चेंजेस the value of the function changes. Okay, so for let us consider x is equals to 5. What is the value of this function? Let us assume the value of this function at x is equals to exactly 5 be 3, right? Now we have options to approach this x. There are two options, either you can approach the x from the right side or from the left side. Now let's start approaching this value at x is equals to 5 from the right side. As we keep on approaching this x and we stop ourselves just right after the x is equals to 5, say maybe 5.00001 or maybe 5 billion times zeros and 1. So the distance between 5 and the right side point where we are stopping ourselves is infinitesimally small. Maybe you can consider the distance between these 2 points is 1000 times, even million times smaller than the thickness of human hair. Now try to find out the value of this function at this particular point. You can clearly see that the value is not exactly 3 but almost equals to 3, greater than 3, maybe 3.00001 or maybe 3 billion times zeros and 1. But we can equate this value with 3, right? Now this value 3.001 of this function at x is equals to 5.001, that means the right side of x equals to 5 is the right hand limit. इसी वैल्यू को मतलब x equals to 5 के ठीक राइट साइड में आपके फंक्शन का क्या वैल्यू है, उसी को हम राइट हैंड लिमिट कहते हैं। अब लेट्स approach this x is equals to 5 from the left side and stop ourselves just before 5, यानी कि 4.99999, and try to find out the value of this function at this point. You can again clearly see from this curve that the value is little less than 3, not exactly 3 but it is almost equals to 3, maybe 2.9999, and that can also be equated to 3. So we can say in this function the limit of this function exists at x is equals to 5 and the limit is 3.
इस एग्जाम्पल की मदद से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि हम लिमिट जब किसी फंक्शन का निकाल रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि एट x इज इक्वल्स टू 5 में अगर हमको लिमिट निकालना है तो x इज इक्वल्स टू 5 के ठीक बाद और x इज इक्वल्स टू 5 के ठीक पहले आपका फंक्शन का क्या वैल्यू है। अगर वो दोनों वैल्यू सेम है तो हम कह सकते हैं दैट योर फंक्शंस लिमिट एग्जिस्ट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब चलिए एक दूसरे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं कि कौन से जगह पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। Now let us assume the another function which is also a function of x. Now at this function at x is equals to 5 we want to calculate the limit of this function. Okay, so let us calculate the right hand limit first as we did in the earlier example. When we start approaching towards x is equals to 5 and stop ourselves just before x is equals to 5, that is 5.00001 again. Here you can see that the value of the function reaches to 2. For example, not exactly 2, maybe it can be 3 or 4, but whatever value, let us assume it is 2, right? Now start approaching this x is equals to 5 from the left hand side and calculate the left hand limit. Now stop yourself just before 5, that is 4.9999. Here the value of your function is 1. So here there is a huge difference between right hand limit and a left hand limit. So we can say for this function limit does not exist at x is equals to 5. लेकिन अगर आप 0 से लेकर के 5 तक किसी भी जगह पे इस फंक्शन की लिमिट पूछे तो मैं कहूंगा कि दिस फंक्शन हैज लिमिट एट x is equals to x belongs to 0 to 5. सो यही है एक्चुअल में लिमिट का कंसेप्ट। ओके, आई होप आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अभी आगे हम लोग समझेंगे और कुछ लिमिट्स के अलजेब्रा है उनको हम लोग और डिटेल्स में जानेंगे। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स डिराइव किए गए हैं, एल हॉस्पिटल रूल की मदद से हम लोग किस तरह से उनको डिराइव कर सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।